سے جمع ہوں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں. خداوند آج صبح تو یہاں موجود ہے, تیرا تخت یہاں پہ لگا ہوا ہے پتا پرمیشور, میں تیرے حضور آیا ہوں. خداوند اپنے سر کو جھکاتا ہوں اور منت کرتا ہوں آج کے ورلڈ کے لیے, آج کے کلام کے لیے, آج کے معتبر کلام کے لیے. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہے, تیرے سندر عظیم قدموں میں جھک جاتا ہوں کہ تو آج ہمیں عقل دانائی اور فہم عطا کیجیے گا تاکہ ہم تیرے منہ کی کہی ہوئی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے والے تیری بیٹیاں اور تیرے بیٹے بن سکیں. پاک خداوند جی میں تیرے حضور منت کرتا ہوں آج کے ورلڈ کے لیے. خداوند آج کا کلام خداوند ہماری زندگی میں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا بڑھتا ہو. آج کا کلام ہمیں خداوند زندگی بخشنے والا ہو. میں خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں تیرے بندہ کے لیے, تیرے خادم کے لیے, تیرے بیٹے کے لیے خداوند, اس کے گھرانے کے لیے خداوند. تو آج کا ورلڈ خداوند جو اسے دیا ہے خداوند تو نے اس میں سے ہو کہ خداوند تیرا پاک روح ہم سے بات کرے خداوند, تاکہ ہم آج سیکھیں کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے. آج ہم سیکھیں کہ تیرا کلام ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. اے باپ آج خود ہم سے ہم کلام ہونا تاکہ ہم تیری باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. خداوند تیرے حضور منت کرتا ہوں آج کے سارے کلام کے لیے خداوند, آج کا سارا کلام خداوند تیری مرضی کے مطابق ہو. خداوند اس چرچ کو, ان لوگوں کو, اپنے آپ کو خداوند تیرے لہو میں کور کر لیتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند ڈیول کی ایسی پلاننگ جو خداوند ہمارے کلام کے خلاف ہے, جو خداوند ہم سے چھیننا چاہتا ہے, اسے ہم بریک کرتے ہیں تیرے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آج وہ بریک ہو جائے اور خداوند اس کلام کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں تاکہ خداوند ہم جب تو آئے تو ہم تجھے استقبال کرنے والے اور خداوند تجھے ویلکم کرنے والے بنے. اس کلام کی وجہ خداوند ہمیں بڑی برکت دینا. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگ لیتے ہیں. آئے میرے عزیزوں میرے ساتھ حوالہ نکالیں یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 11واں باب. یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت ہم تلاوت سنیں گے. میری گزارش ہے بیٹی سحر سے کہ وہ آئے اور تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کرے. میری طرف سے آپ سب کو سلام. خداوند کے پاک کلام میں سے یسایہ 11 باب اور اس کی پہلی آیت. اور رسی کے تنے سے ایک کونپل نکالی گئی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی. خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائے. شاباش بیٹا, خدا آپ کو برکت دے. آئے میرے عزیزوں ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے. وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, ہماری مریم سے پیدا ہوا, پینتوس پلاطوس قید میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن ہوا, عالم ارواح میں اتر گیا, تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلب باپ کے دہنے بیٹھا ہے. وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیسیا پر, مقدسوں کی شراکت, گناہوں کی معافی, بدن کی قیامت اور ابدی زندگی پر. آمین. بہت شکریہ. آپ سبوں کا بیٹھ جائیے گا. خدا ان کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام. میرے عزیزو, آج کا جو ورد ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے, امید ہے کہ ہم سب نے اسے غور سے سنا ہوگا. میں آپ کے لیے دوبارہ اسے پڑھتا ہوں, سنیے گا غور سے. اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک 12 شاخ پیدا ہوگی. سب بولے آمین. میرے عزیزو, آج کا جو
عنوان جو مضمون ہے وہ ہے شاخ. کیا ہے؟ شاخ. جس کتاب سے آج ہم نے تلاوت سنی ہے یہ کتاب یسایہ نبی کی کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے وہ یسایہ نبی نے وہ تمام باتیں جو نبوت کی باتیں تھی یسایہ نبی کی کتاب میں لکھی گئی ہے. یسایہ اموز کا بیٹا تھا اور اموز جو تھا وہ عزیہ بادشاہ کا چچا یا تایا تھا. یسایہ کو اس وجہ سے بادشاہی محل تک اور اس جگہ تک جانے کے لیے بآسانی کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. وہ ایک پڑھا لکھا باشعور آدمی تھا. یسایہ نبی کو پرانے عہد نامہ کا جو ہے وہ انجیلی نبی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے یسوع المسیح کی بے شمار پیشن گوئیاں کی. یسایہ نبی نے یسوع المسیح کی بہت زیادہ پیشن گوئیاں کی جن میں سے ایک آج ہم بھی سن رہے ہیں. جس دور میں جس جگہ پر اس بیٹے کو بٹھائیں اس کو پکڑیں. جس دور کی بات یسایہ کر رہا ہے جس دور میں اس نے یہ پیشن گوئی کی ہے وہ دور بڑا ہی خطرناک دور تھا. وہ دور ایسا دور تھا جس میں خدا کی آواز سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. لوگوں کے اندر یہ وقت نہیں تھا کہ وہ خدا کی آواز کو سن سکے. یسایہ نبی کی ابتدائی باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے او خطاکار کرو بد کرداری سے لدی ہوئی کو بد کرداروں کی نسل مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو کیا کر دیا ہے ترک کر دیا ہے. پھر وہ کہتا ہے تمام سر بیمار ہیں اور دل بالکل سست تلوے سے لے کر چاندی تک کہیں صحت نظر نہیں آتی. اور جس آیت کو آج ہم نے تلاوت کیا ہے یسایہ نبی یہاں پر کہتا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی. یسایہ نے اس سے پیچھے دو پیشن گوئیاں کی ہیں. ایک اس نے پیشن گوئی کی ہے جب آپ پڑھیں یسایہ کی کتاب 7 باب کی 14ویں آیت میں تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. پھر وہ دوسری پیشن گوئی کرتا ہے 9 باب کی 6 آیت میں اور ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اور یہ تیسری پیشن گوئی ہے جب یسایہ نبی یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ہمیں جو ہے خدا جو ہے یسی کے تنے سے ایک کونپل کو نکالے گا اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی. میرے عزیزوں یہ شاخ یہ کونپل کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کون ہے؟ اونچی آواز میں بولیے. یسوع. کون ہے؟ یسوع. اب کیا آپ کو کس اس بات کی کوئی شک ہے کیوں کم ہم نے بولا ہے؟ اونچی آواز میں بولے شاخ کون ہے؟ یسوع. شاخ کون ہے؟ یسوع. یسوع. آج میں اس آیت کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آیت ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ آیت ہے کیا. اوپر والا درخت جو یسی کا ایک درخت ہے وہ یسی کو ایک درخت کی ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور جو اوپر والا درخت کا حصہ تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا.
बनी इसराइल के जितने भी ऊपर वाले लोग थे, बादशाह थे, राया थी, लोग थे, जितने भी थे, वो सब बुत परस्ती की तरफ राग़ब हो चुके थे। बस एक तना और जड़ें बाकी थी। क्या था? तना और जड़ें बाकी थी। और यशायाह नबी कहता है कि खुदा हमें तने से एक कौपल निकालेगा। कहां से निकालेगा कौपल? मेरी बात समझ में आ रही है? तने से एक क्या निकालेगा और उसकी जड़ों से क्या होगी? एक बार बार शाख आमिर साथ है पैदा होगी। बार बार शाख क्या होगी? पैदा होगी। मेरे अजीजों, दरख्त के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? जड़ें, तना और डालियां। कितने हिस्से होते हैं? जड़ें, तना और डालियां। क्या होती हैं? कितने हिस्से हो गए? अब ना तो वो डालियों की बात करता, वो ये नहीं कहता कि कौपल जो है, जो शाख जो है, वो डालियों से निकलेगी। वो 2 जगहों का बयान करता है, क्योंकि डालियां जो थी वो तो बुत परस्ती में जा चुकी थी। कहां पर जा चुकी थी? तना और जड़े। तना और जड़े। मैं आपको थोड़ा सा ये बात आज पहुंचाना चाहता हूं कि दर हकीकत जड़े और तना है क्या? क्या है? जड़े और तना है क्या? तने के जब आप मीनिंग देखते हैं तो तना उस चीज को कहता है, दरख्त का वो वाला हिस्सा जहां तक डालियां नहीं होती और जहां से शुरू हो जाती हैं, उससे नीचे नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तना। आप दरख्त कोई भी देख ले, जहां से डालियां निकलना शुरू होती हैं, उस हिस्से को जमीन तक उतना हिस्सा क्या होता है? तना होता है। और उससे नीचे जो जमीन के नीचे वाले हिस्से को जड़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। जब आप जो अबरानी का डायरेक्ट उर्दू में तर्जुमा है, जब आप वो पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट अबरानी का जो उर्दू में तर्जुमा है वो लिखा है, लेकिन यसी के तना से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौ निहाल उगेगा। हमारा जो उर्दू तर्जुमा है ये इंग्लिश से है, लेकिन जो मैंने आपको उर्दू तर्जुमा सुनाया ये डायरेक्ट अबरानी से उर्दू में तर्जुमा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तना और जड़ 2 डिफरेंट है। यहां पर लफ्ज 2 इस्तेमाल किए गए हैं, जड़ और तना। जड़ के साथ भी डिफरेंट लफ्ज है और तने के साथ भी डिफरेंट लफ्ज है, लेकिन उनके मायने एक ही है, यानी कौपल और शाख एक ही चीज है। कौपल उसको कहते हैं जो ताजा चीज निकलती हो, शाख भी उसको कहते हैं जो ताजा चीज निकलती हो। यानी लफ्ज 2 है लेकिन मायने एक ही है, लेकिन जड़ और तना बिल्कुल डिफरेंट है। जड़ और तना क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आए हम इस कौपल को, इस जड़ को, इस शाख को हम तने से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? तने से निकालते हैं। मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब, मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब निकालेंगे और हम बात करेंगे तने की। किसकी बात करने लगे हैं? तने की बात कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। पहले बाब से थोड़ी सी आयतें पढ़ता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मत्ती की अंजील में मत्ती रसूल एक निस्बतनामा पेश करता है और वो क्या कहता है? और इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा पैदा हुआ। क्या कौन पैदा हुआ? यहूदा पैदा हुआ। ऊपर वाली पहली आयत को पढ़े तो लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निस्बतनामा। यानी यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उनका यहां पर जिक्र है कि वो तने से कौपल निकली है। कहां से निकली है? अब ये बहुत लंबी डिटेल है, ये लंबी डिटेल है, लंबा सिस्टम है। इन तमाम नामों से, इन तमाम जगहों से तना हमने निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? तना। आए मैं निकाल देता हूं।
लिखा है और यहूदा से फारस और जारा तिमर से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुए और हसरून से राम पैदा हुए। ये बातें मैं आपको नहीं बताना चाहता। और नीचे आ जाइएगा और बोएज से ओबेद रूत से पैदा हुआ और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? यहां पर क्या लिखा है? और यस्सी के तने से। अब मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? ऊपर वाला हिस्सा पूरा दरख्त है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? पूरा दरख्त है। अब यस्सी पूरा दरख्त है। अब यस्सी के तने से, तना कहां पर है? तना कहां पर है? आए मेरे साथ, एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अबरानियों का खत और उसका 7 बाब और उसकी 14 लिखा है, चुनाचा जाहिर है कि हमारा खुदावन यहूदा में से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ? मेरे अजीजों, जितना भी निस्बनामा है, जितनी भी यहां पर निस्बनामा है, जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों में से ये यस्सी पूरा एक दरख्त है। उन पूरे दरख्त में से यहूदा तना है। यहूदा क्या है? जब आप पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो जब पैदाइश की किताब में याकूब ने यहूदा को बरकत दी और ये कहा कि तेरी सल्तनत का आसा कभी मौकूफ ना होगा। मेरी बात समझ में आई है? और वो यीशु मसीह है। वो क्या है? वो क्या है? यीशु मसीह। मुकाशवा की किताब और उसके 5 बाब की 5 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, और यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है। वो दाऊद की क्या है? असल है। अब हमने इस बात को जान लिया है कि पूरे दरख्त में से, यहूदा के यस्सी के दरख्त में से तना कौन है? आमिर साहब में तना कौन है? यहूदा। कौन है? तना कौन है? मेरे अजीजों, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर यस्सी बात कर रहा है कि तने में से कौपल निकलेगी, तो यीशु मसीह यहूदा में से आया। कहां से आया? यहूदा में से। जिस तरह अबरानियों के खत में अबरानियों का मुसन्निफ कहता है, चुनाचा हमें ये यकीन होना चाहिए और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहूदा में से पैदा हुआ। किस में से पैदा हुआ? आयत जड़ों की बात करता हूं मैं, फिर मैं आपको इस पूरे आयत के बाद हम फिर शुरू करते हैं। लिखा है कि फिर आगे क्या लिखा है? और जड़ से एक शाख पैदा होगी। जड़ से क्या होगी? जड़ से क्या होगी पैदा? अब यहूदा की जड़ें कहां पर है? यहूदा की जड़ें कहां पर है? अगर आप यहूदा का निस्बनामा पढ़े, लूका की अंजील और उसके, जब लूका की अंजील 3 बाब की 23वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, याकूब, यहूदा का बाप कौन था? याकूब। याकूब का बाप कौन था? इसहाक। इसहाक का बाप कौन था? इब्राहिम। इब्राहिम का बाप कौन था? तारा। पीछे की तरफ जा रहा हूं मैं। और अगर आप पीछे चले जाए तो फिर नूह तक, नूह से सेद, सेद से आदम, और आदम किसका था? खुदा का। किसका था? मेरे अजीजों, यशाया नबी दर हकीकत ये हमें बताना चाहता था कि यीशु मसीह जो पैदा होने वाला है, जो शाख निकलने वाली है, वो खुदा से है। सब बोले हालेलुया। वो हमें ये बताना चाहता था कि यीशु मसीह जो पैदा होने वाला है वो यहूदा के कबीले में से और खुदा से पैदा होगा। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने फकीर और फरीसियों के साथ एक बहस की। वो कहने लगे तुझ में बदरू है। यीशु ने कहा मुझ में बदरू है। यहूदियों ने कहा तुझ में बदरू है, तू तब इसलिए मौजज़े करता है। यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लेगा वो मरेगा नहीं। उन्होंने कहा होते ही सच्ची गल मान ली कि तेरे अंदर बदलू है। जो मुझ पर ईमान ले आया वो कभी नहीं मरेगा। ये हकीकत बात है कि तुझ में बदलू है। उन्होंने कहा कि हमारे अबूजात मर गए, इब्राहिम मर गया, इसहाक मर गया, याकूब मर गया, नबी मर गए, पैगंबर मर गए, सब मर गए, और तू कहता है कि जो मुझ पर ईमान ले आए वो मरेगा नहीं। यीशु ने कहा इब्राहिम मेरा दिल देखने का मुश्ताक था, उसने देखा और कुछ हुआ। उसने कहा तेरी उम्र क्या है? तेरी उम्र 50 से ऊपर नहीं है। यहूदियों ने कहा तेरी उम्र 50 से ऊपर नहीं है, तू इब्राहिम की बात करता है। यीशु ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। अब मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? दर हकीकत यशाया नबी कहना चाहता था
कि यीशु की जो कौपन निकलने वाली है वो खुदा से निकलने वाली है। किससे निकलने वाली है? खुदा से निकलने वाली है। इसलिए तो मेरे मसीहा ने आवाज बुलंद ये कहा, यूहन्ना के 16वें बाब के 28वें आयत में कहा, मैं बाप में से निकला और आया हूं। आज आपको आती है, मैं बाप में से निकला और आया हूं। मैं और बाप क्या है? एक है। इसलिए मेरे मसीहा ने बाआवाज़ बुलंद ये कहा, यूहन्ना के 14वें बाब की 11वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, मेरा यकीन करो मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात हमें जाननी चाहिए। और यशायाह नबी ने बड़ी खूबसूरती से ये बात कही कि यशायाह यसी के तने से कौपन निकली, यहूदा के कबीले से मेरा मसीहा आएगा और उसकी जड़ें यानी खुदा से वो पैदा होकर आएगा। कहां से पैदा होकर आएगा? इब्राहिम, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं, यीशु ने क्या कहा? इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं क्या था? मैं मौजूद था, मैं इब्तिदा ही से मौजूद था। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह का तने में से पैदा होने का क्या मुराद है? ये बात तो हमने जान ली, ये बात भी हमने समझ ली कि यीशु मसीह तने से पैदा हुए। तना एक मजबूत दरख्त है, तना का हिस्सा दरख्त का एक मजबूत तरीन दरख्त है। आप देख ले, कभी भी तने से शालो नादर ही कोई कौपल निकलती है। आप दरख्तों का सर्च करके देख ले, तने से बहुत कम कौपल निकलती है। अगर कोई निकलती है तो वो बहुत मजबूत और नायाब होती है। क्या होती है? अब आप कहते हैं कि ये अनोखी बात है। ये क्या है? अनोखी बात है। और मेरे मसीह का इस जमीन पर आने का मतलब भी अनोखी बात थी। क्या थी? लिखा है, कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। मेरे अजीजों, मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जड़ में से पैदा होना तो मैंने आपको बता दिया कि वो खुदा से पैदा हुआ। इसलिए यशायाह नबी ने कहा कि वो उसका आना जो था वो खुदा से होगा। इस आयत में से एक बात लिखी गई है, वो है 12 वर्षाक पैदा होगी। क्या होगी? 12 वर्ष का मतलब होता है फलदार दरख्त। क्या है? फलदार भाई बच्चा पैदा हुआ है। यीशु मसीह बचपन में ही फलदार शाख है। क्या है? फलदार शाख है। यीशु मसीह को जब 8 दिन के बाद हैकल में पेश किया गया, हैकल में लेकर गए मरियम, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जब हैकल में उसको लेकर गए तो शमाऊन जो रास्तबाज था उसने गोद में उठाकर कहा, मैंने तेरी नजात। वो बचपन ही से फलदार दरख्त था। बचपन ही से क्या था? फलदार दरख्त था। जब मेरा मसीहा 12 साल की एज में जाकर हैकल में गए तो लोगों ने देखकर, जब उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि ये कौन है, इतनी खूबसूरत और इतनी हिकमत की बातें करता है, 12 साल की एज में भी मेरे मसीहा के अंदर फल था। सब बोले हालेलुया। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है। इसलिए यशायाह नबी कहता है कि वो 12 वर्षाक पैदा होगी, उसे फल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको फल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह आप खतों में पढ़ते हैं कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, यीशु मसीह ने कहा। पर यीशु को फल लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पैदा ही 12 वर्षाक थी। क्या थी? 12 वर्षाक थी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी हमें इस बात को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा मसीहा जो पैदा हुआ है वो कुदरत से बड़ा है। वो क्या है? कुदरत से बड़ा है और वो खुदा से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ है? खुदा से पैदा हुआ। उसकी जड़ें कहां पर हैं? खुदा से जुड़ी है। किससे जुड़ी हुई है? खुदा से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे मसीहा ने आवाज बुलंद ये कहा, मैं बाप में से निकला और आया हूं। मैं और बाप क्या है? एक है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़े आए मेरे अजीजों, हम अपने सुर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। मेरी गुजारिश है भाई शमाउन से
کہ وہ آج کے کلام کے لیے دعا کریں۔